حسین کو چاہ کر بھی کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، حسین کو چاہ کر بھی کوئی نیچا، جس حسین کو نبی نے منبر پہ اٹھایا ہو، جس حسین کو نبی نے سجدے میں پشت انور پہ اٹھایا ہو، جس حسین کو نبی نے اپنے کاندھے پر اٹھایا ہو، اس حسین کی عظمت کا کیا کہنا، جس حسین کو نبی نے اتنا اونچا کیا کہ زمانہ اس حسین کو کبھی نیچا نہیں دکھا سکتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، مگر مجھے افسوس ہوتا ہے مارکیٹ میں امام حسین کی یاد منانے والے کئی قسم کے لوگ آ گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین تو وہ ہیں جو دنیا میں آئے نہیں تھے مگر ان کی یاد آ گئی تھی۔ اللہ نے امام حسین کی یاد کا ایسا انتظام کیا، اگر ہم مجلس نہ کریں تو بھی حسین کی یاد نہ میٹے گی، اگر کوئی شاعر منقبت نہ پڑھے تو بھی حسین کی یاد نہیں میٹے گی، اگر مارکیٹ میں کوئی یہ کہے کہ ہم ڈھول بجاتے ہیں حسین کی یاد میں تو صاحب یہ بے وقوفی ہے، کوئی اگر یہ کہے ہم فلاں کام کرتے ہیں حسین کی یاد میں، حسین کی یاد کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو ڈھولک بجانے سے حسین کی یاد تازہ ہو جائے گی، میں پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ ایمانداری کے ساتھ، کوئی کہتا ہے سینہ پیٹنے سے حسین کی یاد تازہ ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے چوڑیاں توڑ لینے سے حسین کی یاد تازہ ہو جائے گی، سلطان رضا کہنا چاہے گا یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں، نہ بلیک کپڑا پہننے سے حسین کی یاد تازہ ہوگی، نہ رنگ نہ ہرا کپڑا نہ سبز کپڑا پہننے سے حسین کی یاد تازہ ہوگی، نہ ہی لال رنگ کا کپڑا پہننے سے حسین کی یاد میں کمی آئے گی۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا، چاہے وہ کعبے کی مسجد حرم ہو، چاہے وہ مسجد نبوی ہو، چاہے وہ مسجد اقصی ہو، چاہے وہ دہلی کی جامع مسجد ہو، چاہے وہ آندھیرا کی جامع مسجد ہو، پوری دنیا کی جتنی مسجدیں ہیں اور پوری دنیا میں جتنے نمازی ہیں، جب جب نماز پڑھیں گے تب تب حسین پہ اور حسین کے نانا پہ درود پڑھنا ہی پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ نے ایسا انتظام فرما دیا، کہا اے میرے بندو، حسین کی یاد قائم کرنے کے لیے تیری مجلس، تیرے ڈھول، تیرے تماشے، تیرے ماتم، تیرے علم کی ضرورت نہیں، دنیا میں کہیں کوئی جب بھی سجدہ کرے گا حسین بھی یاد آئیں گے، حسین کے نانا بھی یاد آئیں گے، کہ آپ کی دہلیز تک کچھ بات پہنچ جائے۔ اس لیے یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ کوئی کہے نہیں مولانا صاحب ہم اکھاڑا نکالیں گے تبھی حسین کی یاد ہے، کوئی کہے ہم یہ ہرا کلر کا کپڑا پہن لیے ہیں، یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں بلیک کپڑا محرم میں نہ پہنو، اس لیے کہ یہ رافضیت کی پہچان ہے، ہرا کپڑا نہ پہنو اس لیے کہ یہ تعزیہ داروں کی پہچان ہے، اور لال کپڑا نہ پہنو اس لیے کہ یہ خارجی امام حسین سے مخالفت کرنے والوں کی پہچان ہے، یاد رکھیے گا۔ اس لیے ہم سادگی والے ہیں، سادگی کو پسند کرتے ہیں، ہم کربلا والے ہیں، سادگی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے خوب یاد رکھیے حسین کی یاد کو کوئی کیا میٹا پائے گا۔ اس لیے میں بتانا چاہوں گا صاحبوں، امام حسین ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، حسنین کریمین دونوں شہزادے آقا کے پشت پر سوار ہو گئے، آقا نے سجدے کو اتنا لمبا کر دیا تاکہ حسنین خود اتر جائیں، حسنین کریمین کو یہ بات معلوم تھی کہ میرے نانا نے میری وجہ سے سجدے کو لمبا کر دیا، نانا بتا رہے ہیں بیٹا حسین ذرا ادھر دیکھ لو، یہ تیری محبت ہے، تیرے نانا نے سجدے کی حالت میں تجھے گرنے نہ دیا، تو نواسے نے بھی کہا ہوگا نانا جان فکر نہ کرے، آپ نے مجھے بچایا ہے، انشاءاللہ حسین جب ضرورت پڑے گی حسین بھی کبھی سجدے کو گرنے نہیں دے گا، کبھی قیام کو گرنے نہیں دے گا، کبھی رکوع و سجود کو گرنے نہیں دے گا، کبھی نماز کو گرنے نہیں دے گا۔ اب تعجب کی بات ہے حسین کی نماز کا عالم دیکھو، حسین کی ماں کا کیا کہنا، حسین کے بابا کا کیا کہنا،
कहना, हुसैन के नाना का क्या कहना। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में कोई ऐसा नमाजी लाओ कि साहब मैदान करबला में हुसैन पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फरमाते हैं, बेटे अली अकबर बताओ कौन सा वक्त हो रहा है। कहा बाबा जान ये करबला की जमीन है, नमाज का वक्त हो रहा है, ज़ोहर की नमाज का वक्त। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, बेटा आजान दो ताकि यजीदी जान जाए करबला में हुसैन जैसा इमाम पहुंच गया है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप हमें भारत के मसनूई करबलाओं में घुमाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जरा गौर से सुनिएगा, इमाम ने करबला में कदम रखा तो करबला की इब्तदा इमाम हुसैन की आजान से है। ऐ करबला में जाने वालों, बताओ तुम भारत के मसनूई और बनावटी करबला में जाते हो, तुम्हारे करबला में कितने वक्त की आजान होती है, तुम्हारे करबला में कितने वक्त की नमाजें होती है। बताओ करबला में औनो मोहम्मद की शहादत के बाद भी हजरत ज़ैनब ने कभी मुसल्ला नहीं छोड़ा था। बुलंद अली अस्कर की शहादत के बाद हजरत इमाम हुसैन की शरीके हयात हजरत ईरान की शहजादी नौशेरवा की पोती ने अपना मुसल्ला नहीं छोड़ा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ नाम नेहाद हुसैनियों, तुम मुहर्रम में कितने वक्त की नमाजें पढ़ते हो। याद तो ये होनी चाहिए कि मुहर्रम में तेरी नमाज बढ़ जाए, मुहर्रम में तेरा रोजा बढ़ जाए, मुहर्रम में कुरान की तिलावत बढ़ जाए, मुहर्रम में सदका और खैरात बढ़ जाए, मुहर्रम में यतीमों से हमदर्दी बढ़ जाए, मुहर्रम में बेवाओं से प्यार बढ़ जाए। हुसैन करबला में इसलिए गए थे। आज मैं जब इधर से लौट रहा था तो देखा ये कुतुब छपरा में बच्चे ढोल बजा रहे हैं और बैर का पत्ती तोड़ करके साहब आगे रखे हैं। क्या तमाशा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। आज इन नाम नेहाद डुप्लीकेट हुसैनियों के किरदार से यही पता चलता है कि करबला में उन यजीदियों ने इमाम हुसैन के खिलाफ इसलिए तलवारें उठाई थी कि उन्हें शरीयत नहीं बल्कि दुनिया की बाजारी और दुनिया की बिकाऊ चीजें पसंद थी। आज ये नाम नेहाद डुप्लीकेट हुसैनी ढोल बजाकर किरदारे हुसैन को कत्ल कर रहे हैं, तमाशा करके करेक्टरे हुसैन पे दाग लगा रहे हैं। इनके किरदार को देखकर गैर तो यही कहेगा शायद हुसैन ने यही पैगाम दिया होगा, शायद हुसैन ने यही दर्श दिया होगा। आज अफसोस है, मातम तो इस बात पर कीजिए कि लोगों ने इमाम हुसैन की याद मनाने का कैसा कैसा खुराफात वाला तरीका निकाल लिया, कैसा कैसा खुराफात वाला तरीका निकाल लिया। अब कोई बंदर बनकर हुसैन की याद मना रहा है, हाथ पांव में रस्सी बांधकर, कमर में रस्सी बांधकर और इमाम हुसैन की याद मना रहा है। जालिमों याद रखो, कल बरोज़े महशर इमाम हुसैन तुझे छोड़ेंगे नहीं। कल इमाम हुसैन की रूह तुझसे क्या कहेगी। आज हम बड़े आराम से हैं। इमाम हुसैन तो इस यजीद के खिलाफ इसलिए खड़े हुए कि यजीद शरीयत का बागी था, यजीद हुसैन का बागी नहीं, यजीद शरीयत का बागी था। इमाम हुसैन उसकी मुखालिफत में खड़े हो गए। कहा, ए यजीदियों तुम क्या चाहते हो। हुसैन जब तक जिंदा है शरीयत पे आंच नहीं आने देगा। हुसैन जब तक जिंदा है शराब की हुर्मत को पामाल नहीं होने देगा। यजीद जब तक जिंदा है, याद रखना, शरीयत हुसैन जब तक जिंदा है, यजीद यूं याद रखना शरीयत पे आंच नहीं आने देगा। नतीजा क्या निकला, यजीदियों ने सोचा था हमारे पास ताकत है, हमारे पास लश्कर है, हमारे पास हथियार है, हमारे पास फौज है, हम हक बोलने वाले हुसैन के सर को कुचल देंगे, उनके सर को तन से जुदा कर देंगे, उनके साथ देने वालों को निश्तो नाबूद कर देंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन शरीयत के बागियों की मुखालिफत में मैदान करबला में गए थे। आज अगर कोई हमारा आलिम शरीयत की बका के लिए, शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए, शरीयत की बात बताने के लिए अगर आपको असल हुसैनी बनने का पैगाम दे तो इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए? बोलिए, इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि असल हुसैनियत यही है कि गुनाहों से तौबा कर लिया जाए। शराबी है तो शराब से तौबा कर ले, जुआरी है तो जुआ से तौबा कर ले, पापी है तो पाप से तौबा कर ले, नाच गाना बाजा वाले हैं तो इससे तौबा कर ले। इमाम हुसैन की तरह सजदा करने वाले बन जाए, उनकी औलादों की तरह राहे खुदा में जान लुटाने वाले बन जाए, उनके बीवी बच्चों की तरह राहे हक में बोलने वाले बन जाए, उनकी औलाद की तरह दमिश्क के जामे मस्जिद में यजीदियों के सामने खड़े होकर हुसैन की हकानियत का ऐलान करने वाले बन जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए मेरे दोस्त ये खूब याद रहे, करबला की इब्तदा आजान से है और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। अगर करबला जाना ही हुसैन की याद है तो बंद करो सारा काम, चलो करबला। हम भी चलते हैं, तुम भी चलो, सबको लेकर करबला चलो, मगर करबला में वही करो जो करबला में हुसैन ने किया। करबला में वो करो जो हजरत सकीना ने किया है, करबला में वो करो जो हजरत कासिम ने किया है, करबला में वो करो जो हजरत ज़ैनब ने किया है, करबला में वो करो जो हजरत शहरबानो ने किया है। अब करबला में पहुंचते ही सबसे पहला काम जो हुसैनियों ने किया वो हजरत अली अकबर ने आजान दी। हजरत अली अकबर ने आजान दी है। आज जिसको आजान देने नहीं आता वो हुसैन का नाम लेकर ढोल बजा रहा, आज जिसको सही से कलमा नहीं आता हुसैन का नाम लेकर सीना पीट रहा है। असल हुसैनियत ये है, कलमा पढ़ो, हुसैन के ने नाना के नाम को ऊंचा करने के लिए करबला में जामे शहादत नोश किया था। याद रखना, इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब करबला में कोई आजान देने वाला न था और कोई यजीदी आजान देने को तैयार न था तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है आती है, हजरत बीमार ज़ैनुल आबिदीन से कहती है, ज़ैनुल आबिदीन मेरे शहजादे खड़े हो जाओ और करबला में आजान दो, इसलिए कि भैया हुसैन की शहादत के बाद अब हमारे खेमे में कोई मर्द नहीं बचा है, सिर्फ तुम बचे हो। आजान दो ताकि ये यजीदी जान जाए हुसैन कत्ल हुए हैं, नाना की दी हुई आजान और दिलवाई हुई आजान कल भी जिंदा है और आज भी जिंदा है। नाना की शरीयत कल भी बाकी थी और नाना की शरीयत आज भी बाकी। हम कैसे हुसैनी हैं? करबला में हुसैन शरीयत बचाने गए और हम करबला में शरीयत ज़बह करने जा रहे हैं। शरीयत कहती है औरतों को घर से नहीं निकालना है, हम पूरा खानदान लेकर रोड पे घूम रहे हैं। शरीयत कहती है नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, हम पूरी रात नमाज छोड़कर नाच गा बाजा रहे हैं। शरीयत कहती है कि बेटियों के सरों पे दुपट्टा रहना चाहिए, हमारी बेटियां दुपट्टा उतार कर और मेले में खड़े होकर ओड़ा पाव और गुलगुल्ला खा रही है। हम कितने बाहया है। अल्लाह अल्लाह, क्या हजरत ज़ैनब ने यही पैगाम दिया था? अगर आप बड़ी बहुत आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो सुल्तान रजा कहना चाहेगा, क्या आपकी अपनी बेटियों को मुहर्रम में फातिहा करना सिखाया है? लेकिन सुल्तान रजा प्यार से आपसे पूछना चाहता है, बताओ हुसैनियों, आपने कभी अपनी बेटियों को हजरत सकीना का किरदार भी सुनाया? नहीं सुनाया। अगर सुना दिए होते तो आज बेटियां आवारा नहीं होती। आज सिर्फ हजरत कासिम की मेहंदी निकालने वाले और हजरत कासिम की मेहंदी देखने के लिए भीड़ लगाने वाले, शरीयत में ये जायज नहीं है कि जो इंतकाल कर जाए अब उसके नाम की मेहंदी निकल लगाइए। याद रखिएगा, शरीयत मना करती है, नहीं, ये तो जख्म को कुरेदना हो गया, ये तो जख्म को ताजा करना हो गया। हजरत कासिम की असल पहचान तो ये है, हजरत कासिम की निगाहें बाहया थी। हजरत कासिम ने चचा की मोहब्बत में मैदान करबला में शहादत के जाम को पिया और कहा, भतीजा हो तो हजरत कासिम की तरह और चचा हो तो हुसैन इब्ने अली की।